రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా గోమహాగర్జనకు కదం తొక్కయ్యా గోమాత గోస శాశ్వతంగా తీర్చుటకయ్యా జై గోమాత జై జై గోమాతాని జై గోమాత జై జై గోమాతాని కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా కన్నున్నా నీవు గుడ్డి వాడవైతివా చెవులున్నా ఆక్రందన వినబడకుండా నోరున్నా నీవు పశువుగా మారుదువా పశువుకు నీకు ఇంకా భేదమేమిరా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా సకల దేవతల నిలయం మన గోమాత గోమాత సేవ సకల దేవతల సేవరా గోమాతనింక నరుకుతుంటే చూస్తుంటావా నీవెన్ని పూజలు చేస్తే లాభమేమిరా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా గోవుతోని గోవిందాని నామమొచ్చెరా గోవులేని గోపాలుడు మనకు లేడురా గోవుతోనే గోత్రమింకా చెప్పబడెనురా గోవులేని దేని చిరునామ లేదురా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా నడిచేకో వెలరా మన గోమాత మన అమ్మలకే అమ్మరా మన గోమాత మన అమ్మ గోమాత నరక బాధననుభవిస్తుంటే చూసి చూడనట్లింకా ఎట్లుంటవయా లే 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 అమ్మ పాల రుణం తీర్చ అడుగు ముందుకే గోగర్జన శంఖమునింకా నీవు పూరించే మరో ఛత్రపతిలా శాలివాహనుడిలా గురు గోవింద్ సింగ్ గా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా గోమహాగర్జనకు కదం తొక్కయ్యా గోమాత గోస శాశ్వతంగా తీర్చుటకయ్యా జై గోమాత జై జై గోమాతాని జై గోమాత జై జై గోమాతాని కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా గోమహాగర్జన
గర్జనకు కదం తొక్కయ్యా గోమాత గోస శాశ్వతంగా తీర్చుటకయ్యా జై గోమాత జై జై గోమాతాని జై గోమాత జై జై గోమాతాని కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుటకయ్యా గోమహాగర్జనకు కదం తొక్కయ్యా గోమాత గోస శాశ్వతంగా తీర్చుటకయ్యా జై గోమాత జై జై గోమాతాని జై గోమాత జై జై గోమాతాని కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా ନିଆଯାଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଅନୁମତି କେହି ମାଗି ନାହାନ୍ତି ନା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ସାରା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ଆସି ଛାଇ ହୋଇଗଲେଣି ସେ ଏଭଳି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନାନା ଧନ୍ଦା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କେବଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ନୁହେଁ ଏ ସହରରୁ కన్లున్నా నీవు గుడ్డి వాడవైతివా చెవులున్నా ఆక్రందన వినబడకుండా నోరున్నా నీవు పశువుగా మారుదువా పశువుకు నీకు ఇంకా భేదమేమిరా కదలి రండి కదలి రండి కదలి రండయ్యా గోమాతను జాతీయ ప్రాణిగా చేయుట ନିରୀହ ନାବାଳିକା ନିରୀହ ଯୁବତୀ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଫୁସୁଳେଇ ଲଭ୍ ଜିହାଦି ନାମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ବିରୋଧ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରେମୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେବା ପିନ୍ଧିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଆମ ଘରରେ ओडिशा टेम्पल इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाकर के आग लगा दी, मूर्ति को तोड़ा और वहाँ के जो पुजारी थे उनकी हत्या कर दिया, मंदिरों को लूट लिया। इतना नहीं, रामकृष्ण मिशन के अंदर गए, वहाँ भी जाकर के मठ मंदिरों के अंदर क्षति पहुँचाया और वहाँ के जो पूज्य संत थे उनकी पिटाई किया। अनुकूल चंद का भी आश्रम चलता, वहाँ भी गए। अर्थात कहने का मतलब जितना धार्मिक स्थान है उन धार्मिक स्थानों पर जाकर के तोड़ फोड़ किया और वहाँ के रहने वाले संत और पुजारियों की पिटाई किया और उनकी हत्या कर दी। अभी वो हत्या थम नहीं रहा है, लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है। इसको लेकर के पिछले दिनों 9 तारीख को 9 अक्टूबर को हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे उड़ीसा भर में हमने बिछो सभा का एक कार्यक्रम किया था, प्रदर्शन किया था। लेकिन परसों विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हमारे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने एक प्रेस नोट के माध्यम से
केवल बांग्लादेश नहीं तो बांग्लादेश के साथ ही साथ जो हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहा है, और खास करके उस उत्पीड़न में मुझे बताना है कि जो हमारे देश के जो अन्य पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक दल है, वो सभी मौन है। वो कोई भी पार्टी है, वो पार्टी मौन है। कोई हिंदू की हत्या हो रही है, बहुत सारे सेकुलर लोग हैं, बहुत तरह के तथाकथित पत्रकार हैं, ऐसे सारे लोग मौन हैं। तो बांग्लादेश की घटना बताया। उसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने एक स्कूल में जा कर के जो वहाँ के टीचर थे उनका जाति पूछ करके मुसलमान हो कि हिंदू हो, ऐसे 2 लोगों की हत्या कर दिया। एक हमारे सिख भाई थे और एक हमारे वहाँ के रहने वाली जो कोई अध्यापिका थी, उनकी हत्या हुई। इतना ही नहीं तो जम्मू कश्मीर के अंदर अनेक लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बिहार के अंदर 2 मजदूरों की हत्या हो गई। यह सारा घटनाक्रम चल रहा है। दुर्भाग्य से जो हमारे हिंदू लोग हैं देश के अंदर के, वो मौन हैं। आज हमको रोहिंग्या मुसलमानों के लिए ये पार्ला खिवंडी में आकर के नारा लगाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है। घुसपैठी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनकी कोई नागरिकता नहीं है, उनका कोई पासपोर्ट नहीं है, उनका कोई स्थान नहीं है। ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो हमारे गजपति जिले के अंदर घूम रहे हैं। मैं आजकल पिछले दिनों, आज के 6 महीने पहले का समाचार पढ़ा। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के कॉलोनी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान घुस गए। कुछ लोगों से झगड़ा हुआ, हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान आए और दिल्ली की जहांगीरपुरी कॉलोनी के अंदर हिंदुओं के घर में जाकर के पिटाई किया और 3 लोगों की हत्या किया। सवाल ये है कि हम केवल नारा लगा रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान बाहर जाओ, बाहर जाओ, अतिक्रमण बंद हो, हिंदुओं का लव जिहाद बंद हो, लड़कियों का ले जाना बंद हो, गो हत्या बंद हो। यह देश के अंदर केवल नारा रह गया है। यह केवल नारे से काम नहीं चलेगा। नारा लगाते लगाते आप देश को समाप्त कर देंगे, देश को खो देंगे। जब तक भारत का हिंदू अगर इसका प्रतिकार नहीं करेगा, जान के बदले जान नहीं लेगा, तब तक यह बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का उत्पीड़न बंद नहीं होगा। ये हमारे सभी भाई मौजूद हैं। मैं भाषण के द्वारा उद्वेग फैला रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन इसका विकल्प क्या है? हम सब जगह मार खाते रहेंगे, ऐसे हमारे हिंदुओं का उत्पीड़न होता रहेगा। बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर में ऐसा होता रहेगा। हम केवल नारा लगाएंगे और मेमोरेंडम देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। इसका बदला लेना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश के अंदर 5 हिंदुओं की हत्या होती है तो भारत के अंदर जब तक हम 25 हत्या नहीं करेंगे मुसलमानों का, यह दंगा थमने वाला नहीं है भाइयों। नारा लगाते रहो। हम 1947 क्या 200 साल से नारा लगा रहे हैं, लेकिन हिंदू का उत्पीड़न कहीं बंद नहीं हो रहा है। इसका बदला लेना पड़ेगा, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो यह मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। हमारा मतलब है कि दंगा करना नहीं है, लेकिन विकल्प क्या है मेरे पास? हम हिजड़ी सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, हम यहाँ के चाटुकार नेताओं के भरोसे बैठे रहेंगे जो बांग्लादेशी मुसलमानों को लाते हैं, उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र दिलाते हैं, उनकी वोटर आईडी बनवाते हैं, उनको मत देने का अधिकार दिलाते हैं, उनके लिए सरकारी आवास बनवाते हैं, उनका राशन कार्ड बनवाते हैं। ये बनवाने वाले कौन लोग हैं? ये बनवाने वाले देश के हमारे गद्दार नेता हैं। वो बनवाने वाले देश के हमारे गद्दार अधिकारी हैं जो अपनी आंखों के सामने इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आज तुम काम कर लोगे चंद पैसों को लेकर के, 1000-2000 रुपया तुमको मुद्रा मिल जाएगा, लेकिन आज के 20 साल बाद गजपति जिले का क्या होगा विचार करो। हमारे बहुत पत्रकार भाई यहाँ नौजवान दिख रहे हैं जिनकी उम्र 25-30 साल है। आज के बुढ़े हो गए, जब 50 साल के हो गए, 60 साल का हो गए, जब गजपति जिले के अंदर जाति समीकरण बिगड़ेगा, धार्मिक संतुलन बिगड़ेगा, ये हमारे सभी लोगों को घर छोड़ करके भागना पड़ेगा। कहाँ भाग करके जाओगे भाई? बगल में समुद्र है, उस समुद्र में मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब पिछले दिनों हमने देखा है अफगानिस्तान के
पूरे देश को तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। उन तालिबान के कब्जा करने के बाद देश के अंदर लगभग 57 ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं। किसी भी अफगानिस्तान के मुसलमान को कोई भी ऐसा देश नहीं बोला, भाई तुम अफगानिस्तान के बंधु मुसलमान मेरे भाई हो, तुम हमारे आकर के मेरे देश में शरण ले लो। आज कोई भी मुसलमान, कोई भी मुस्लिम राष्ट्र हमारे अफगानिस्तान के अंदर के रहने वाले एक भी मुसलमान को अपने देश में रखने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है आप जान सकते हैं, लेकिन हमारा भारत धर्मशाला है, हमारे देश के नेता धर्मशाला जैसे हैं, उनके लिए इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमने 1947 में देश के विभाजन को झेला है। हम भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम के आधार पर अब कोई भी देश बंटने नहीं देंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम हथियार भी उठाएंगे। यह मेरा दावा है, मैं हाथ पर हाथ बंद करके रखने वाला नहीं हूं। यह जो आंदोलन हो रहा है, आज आपने गजपति में देखा, यह विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर पूरे देश भर के अंदर हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महामहिम माध्यम को जिलापाल के माध्यम से मेमोरेंडम दिया है। हमने चेतावनी दी है, हमने महामहिम को बोला है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की उत्पीड़न हो रहे हैं, वो भारत की सरकार पर दबाव बनावे। भारत की सरकार प्रयास करके वहां के रहने वाले हिंदुओं के उत्पीड़न को बंद करावे। वहां के जो मंदिर टूटे हैं उनको वहां की सरकार निर्माण करे, अनुदान दे, नहीं तो हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा। आज हम लोगों ने पूरे देश भर के अंदर जिलापाल के माध्यम से महामहिम को मेमोरेंडम दिया है। उड़ीसा के अंदर कार्तिक पूर्णिमा, कौन पूर्णिमा है, कुमार पूर्णिमा के कारण सारे ऑफिसेज बंद थे, इसलिए हम उड़ीसा के अंदर आज हमने गजपति का दिया है। वैसे कल हम पूरे उड़ीसा भर के अंदर मेमोरेंडम देने वाले हैं और उसके माध्यम से माननीय जिलापाल के माध्यम से सूचना महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पहुंचे और बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं वो हमारी केंद्र की सरकार और कोई भी सरकार है वो तुरंत वार्ता करके बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो। आज हमारा यह जो सभा चल रही है इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके अंदर हमने स्थानीय मुद्दों को भी जोड़ा है, जो हमारे अनेक कार्यकर्ताओं ने बोला है।